हाँ जी, सत श्री अकाल सारे बच्चों नूं। CF रिकॉर्ड्स। हाँ जी, आगे जी आगे, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है लग रहा है। तरुण सिंह भी जी, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ते वीडियो बिल्कुल साफ दिख रही है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ मेरी ਜਿਹੜੀ फोटो है वो नहीं आएगी आज। हाँ जी, राम राम प्रवीण जी। सत श्री अकाल समनदीप कौर। हाँ जी, फटाफट सारे जने लाइव जुड़ जाओ भी। 7:15 ਤੇ क्लास शुरू कर देंगे क्योंकि अज जो स्टैप है वो अपना 6th नंबर स्टैप है कमीशन और इनकम टैक्स। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰੀਜ਼ਨ क्योंकि आप जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलांगे तो अपने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। इस करके अज तक जो मैं स्टैप करावांगा बिल्कुल वे टू वे चलांगे आप, क्योंकि इतों तक समझना जरूरी है। फटाफट आ जाओ भी सारे जने जल्दी। तुहाडा सारियां दा पंजाब स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते स्वागत है। गुड इवनिंग सुखप्रीत जी, गुड इवनिंग। फटाफट सारे जने आ जाओ भी। सफलता नूं सिर ते चढ़न ना दिओ अते असफलता नूं दिल विच उतरन ना दिओ। अज दा जिहड़ा थॉट है वो ये है कि जिहड़ी तुहाडी सफलता है भावें वो छोटी तो छोटी है, ਉਹਨੂੰ कदे भी आपदे सिर ते ना चढ़न दो, क्योंकि जे छोटी जी सफलता तुहाडे सिर ते चढ़ गई तो समझ लो अगे तुहानू असफलता ही मिलनियां ने। तू सुनिया ना, मैं ईगो ईगो बहुत वड्डी चीज़ हुंदी है। कुछ बच्चे मैं इहो ਜਿਹੇ देखे ने ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट जॉब लगन तो बाद पढ़ते रहते हैं और उस तो वड्डी पोस्ट की तैयारी करते रहते हैं। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ कि उन्होंने आपकी सफलता ਨੂੰ सिर ते नहीं चढ़न दिता। लेकिन कुछ स्टूडेंट ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ। ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਚੜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਚੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? करके ले आयो सारे जने, दसो फटाफट। जे करके ले आए हो तो उत्तर दे दो, नहीं करके ले आए तो मैं करवा देना है। रसदीप चहल ने उत्तर कढ़िया 9720, बहुत ही वधिया भी। होर कैंडिडेट दसो भी। जेड़ा मेरी थीम नू समझ गया सी उन्हें उत्तर पक्का कढ़िया होएगा 100%। अच्छा, एक आज दी शायद खबर आई है, एक मैं सुनिया सीगा कि ये खबर बिल्कुल सही है, मैनू तुसी दस्यो। मैं सुनी सी इस करके मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा पहला कि तुहाडा पेपर TCS लेगा, टाटा कंसल्टेंसी लेगा। मैं एक खबर सही सुनी है, मैनू दसो एक बारी कि तुहाडा पेपर TCS लेगा,
ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਹਾਰਡ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮੋਡਰੇਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਆਏਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਏਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੌਜੀਕਲ ਸਟੈਪ ਨੇ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 100% 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਏ 90% ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ डाले गए मतों के डाले गए मत किन्ने सीगे 90 ਤੇ 90 ਦਾ ਕਿੰਨੇ 20% ਆ ਲਓ ਜੀ 0 0 0 18 ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ 18% ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 18 ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 10 ਚੋਂ 8 ਗਿਆ 2 ਤੇ 8 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 7 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 72% ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਗਏ 72% आ गए ठीक है जी उन्हें की क्या अपन डाले गए मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया यानी ए ता अपने हैगे ने अवैध ते ए अपने हैगे आ डाले गए मत सॉरी ये वाले केड़े मत ने डाले गए मत 18% की हो गए अवैध हो गए तो अपने कोले देखा जाए तो आ केड़े वोट आ गए ये वैलिड वोट आ गए कि नहीं आ गए अपने पास आ गए ना वैलिड वोट ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਧ ਮਤ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 72% ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲਓ ਦੈਟਸ ਆਲ ਜੇ ਵੈਧ ਮਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 72% ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਧ ਮਤੋਂ ਦਾ 55% ਯਾਨੀ 72 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ 55% ਆ ਲਓ ਜੀ 72 ਦਾ 55% ਕਿੰਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 72 ਦਾ 55% ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 55% ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 55% ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ 55% ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ 55% ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੇਲ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 100% ਦਾ ਕੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ डाले गए वोटों का ਹੁਣ ਦੱਸੋ शुभम शर्मा ने गलत देता भी उत्तर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 100% ਔਰ ਜੇ डाले गए वोट ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ 90% फिर तुसी 90 ਦਾ ਕਰੋਗੇ 55% इज दैट क्लियर हाँ जी बिल्कुल दोनों चीज़ां गल क्लियर होगी ना इत्थे जो लिखिया आपां ओदा ही करांगे ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੈਧ ਮਤਾਂ ਦਾ 55% ਤਾਂ ਆਪਾਂ 72 ਦਾ 55 ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 55% ਫਿਰ ਆਪਾਂ 100 ਦਾ 55 ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਡਾਲੇ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 55% ਯਾਨੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 90 ਦਾ 55% ਕਲੀਅਰ
चलो जी हुण इहनूं सोल्व करदे हां। तुसीं ध्यान नाल देखो 72 नूं किहदे नाल गुणा करना है 55 दे नाल। आपां इहनूं कट सकदे हां लेकिन तुहानूं जिहड़े मैं शुरू दे 3 दिन लाए सी ओह किते ना किते यूज तां करो। आ देखो ये यूज तुहानूं करना है। आ देखो 72 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करना है 55 नाल। तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि आ रकम 2 नाल कट रही है, ए रकम 5 नाल कट रही है, कट दो। ਜਦੋਂ ਆ ਰਕਮ 2 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 5 ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 36 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 11 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 36 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ 396 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। यानी 72 ਨੂੰ 55 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 396 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 0 ਲਾਵਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ 100 ਪਿਆ ਹੈ ਆ 0 ਕੱਟ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 39.6 ਆ ਗਿਆ यानी 39.60 आ गया। इत्थों तक दसो समझ आ गया? इत्थों तक समझ आ गया? फटाफट दसो। बहुत वधिया भी। चलो जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 39.6 ਕਿੰਨੇ 39.6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39.6 ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆ 72 ਹੈ ਤੇ ਇਹ 39.60 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 40 ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 32 ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੂਰਾ 32 है ना ਤੇ 32 ਪਿਆ लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 40 नहीं है 39.60 है यानी अपने कोले 32 पॉइंट कितना बच गया 40% बच गया। ये 39.60 ये 32.40 दोनों दे विच किन्ने दा डिफरेंस है देख लो 20 ते 9 चो 2 गया 7 यानी 7.20 जड़ा परसेंट है वो किहदे बराबर है वो 2160 दे बराबर है। दस्सिया सी ना मैं इन्हां दा जड़ा अंतर होएगा वो इस रकम दे तां बराबर होएगा ही होएगा। चलो जी हुण इन्हें पूछा कि तो बताओ हारने वाले प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले। तो हारने वाले प्रत्याशी ਨੂੰ ਵਾਸਤਵ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ 32.40 ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 32.40 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। यानी 2160 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ 7.20 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7.20 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 32.40 ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 9720 कर लूंगे। कर लूंगे भी दसो दसो भाई कर लूंगे। सेकंड वाला केड़ा सन्नी जी सेकंड वाला केड़ा फटाफट दसो मैनू टाइम वेस्ट नहीं करना आपा। अरे ये तो सिंपल सीगा देखो 72 है 72 चों आपां 39.60 घटावांगे है ना तो मैं ट्रिक दसी है भी आपां इनू 40 कह सकते हैं ना जे 39.60 नू आपां 40 कहांगे तो 40 ते 32 72 ही तो होंदे है ਇਹਦਾ मतलब है 32 तो आएगा ही आएगा। हुण आपां नू पता है 40 नहीं है ये 39.60 है यानी 0.40 घट है ਇਹਦਾ मतलब है 0.40 इधर ज्यादा होएगा इधर ज्यादा लिख दो बस गल खत्म। आ गया समझ में? ठीक है जी चलो जी
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। शिवदीप मलिक जी की कह रहे हैं, एक बार देख लेने आ। शिवदीप मलिक जी कह रहे हैं कि 10% की वैल्यू 2160 रखिए। फिर इन्हू चेक कर लो एक बारी। नहीं, ये तो फिर कोई कुदरती तुक्का लग गया होएगा, सेट पै गया। कुदरती आ गया होएगा, बाकी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ 45 ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ 100% ਮੰਨੀਏ ਵੀ 100% ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ, 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2160 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦੀ 45 ਦੀ, ਹਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਸੈੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि लीगली तो यही है ना, थीम तो यही कहती है। बाकी कोई गल नहीं, तुसीं देखिया है, मैं इन्हू चेक जरूर कर लूँगा। ठीक है, चलो हुण देखो बई आपां इनकम ते डिपेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। इनकम ते डिपेंड सब तो पहला जिहड़ा क्वेश्चन बनेगा वो एक सिंपल जिहा क्वेश्चन बनेगा। देखो सारे जने ध्यान नाल, की कहता है कि एक व्यक्ति की जिहड़ी आय है, एक व्यक्ति, ठीक है जी, दी आय, एक व्यक्ति दी आय दा 60% भाग खर्च, एक व्यक्ति दी आय दा 60% भाग खर्च हुंदा है। ठीक है जी, खर्च हुंदा है। यदि यदि उसदी आय, यदि उसदी आय 15% वध जाए, यदि उसदी आय 15% वध जाए अते जिहड़ा खर्चा है अते खर्च भी 5% वध जाए, तां उसदी बचत ते की प्रभाव पएगा। उसदी बचत ते की प्रभाव पएगा। ये क्वेश्चन सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडे पेपर दे लिहाज नाल। ये क्वेश्चन हर एक पेपर दे विच पुछदा है। ये क्वेश्चन कहना की चाहुंदा है, ध्यान नाल देखो। ये कहता है कि एक व्यक्ति की आय जिहड़ी है ਉਹਦਾ 60% भाग वो खर्च करता है। यानी कहने का भाव ये होया कि उस बंदे की जिहड़ी इनकम है वो किन्ने परसेंट है, आपां मान लेने 100 मान लेने, उस बंदे की जिहड़ी इनकम है वो कितनी मान लेने आपां 100, ते वो आपदी इनकम का किन्ने परसेंट खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। यानी 100 का 60% कितना होंदा है 60। जे उन्हें आपदी 100 रुपए की इनकम चों 60 रुपए खर्च करता तो उसकी बचत कितनी आई, बचत कितनी आई 40 रुपये। यानी सेविंग कितनी आ गई 40 रुपये आ गई। हुण उन्हें की किया, यदि उसकी आय 15% वध जे, मतलब उसकी जिहड़ी इनकम है वो 100 रुपए है, जे वो 100 रुपए का 15% वध जे, वो ये कह रहा है 100 रुपए का 15% वध जे, मतलब कितना वध जे 15 रुपए वध जे। मान लिया आपां जे 15 रुपए वध गए तो उसकी वास्तव इनकम एट प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, हुण 115 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी
115 हो जाएगी। अगे चलो, अते खर्च भी 5% वध जे। हुण देखो खर्च कितना है अपने कोले 60 रुपए, ये भी तो 5% वधिया है। हलो जी, 60 का कितना कटना है आपां 5%, 60 का 5% कटांगे तो कितना आएगा दसो 3 रुपये आएगा। कितने रुपए आएगा 3 रुपये। क्लियर। 5% ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/20 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो 20 की है 60। ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 5% ਬਟਾ 100 ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 60 ਦਾ 5% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਰੁਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ 63 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ 63 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਚੋਂ 3 ਗਿਆ 2 ਤੇ 11 ਚੋਂ 6 ਗਏ 5, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 52 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 40 ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 52 ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ, ਸੇਵਿੰਗ ਵਧ ਗਈ ਜੀ 12 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਧ ਗਈ 12 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਰੁਪਏ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਧੇ ਨੇ 40 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੇਵਿੰਗ 40 ਸੀ ਨਾ, 40 ਤੇ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੋ, ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵਧੀ 40 ਤੇ 100 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਦਾ 4 ਤੀਏ 12, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧ ਗਈ 30% ਵਧ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧ ਗਈ 30%। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ 12 ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ 30% ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ A ਹੈ, A ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 12 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ 24 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आ गई भी गल समझ सारे नूं। अरे दसो भाई। आ गई। हुण इहो जिहा क्वेश्चन एक होर दिना मैं, तुसीं करियो ठीक है ना। ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया कि जो इहो जी थीम आए तो आपां नूं एवें करना है। चलो जी अगे आ लो जी, अगला क्वेश्चन तुसीं करना है ठीक है जी। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम 100 रुपए ठीक है जी, ते वो करता है किन्ने परसेंट 70% खर्च करता है ठीक है जी, 70% खर्च करता है ठीक है जी। और उस तो बाद विच वो कहता है कि जे ओदी आय जिहड़ी है वो तां वध जे 24% और जिहड़ा एक्सपेंडिचर है वो वध जे 15%। तां दसो कि सेविंग ते की प्रभाव पएगा, दसो तां दसो कि सेविंग ते की प्रभाव पएगा।
दसो भी फटाफट। फटाफट दसो भी इन्ना टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ फटाफट वाली। अड़ताली पॉइंट 3 आया। ध्यान नाल देखो भी, देखियो ध्यान नाल देखो भी 100 ਦਾ 24% ਵਧਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 124 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, 100 ਦਾ 24 24 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। इधर 70 का 15% ਵਧਿਆ। आ लो जी, नॉर्मल कर रहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हालांकि 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3/20 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3/, हाँ ठीक है। आ देखो क्योंकि 5 की 15, 5 नहीं 10, 3/20 नॉर्मल करो। आ लो 15 7 कितना हो गया, 15 6 90, 15 7 105। आ लो 10.5 आ गया। जे 10.5 बताओगे तो कितना हो गया, 80.5। कितना हो गया, 80.5। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 100 ਚੋਂ 70 ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 30 ਆਏਗੀ ਸੇਵਿੰਗ, और 124 ਚੋਂ 80.5 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ 80 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। 80 ਤੇ 20 100, 100 ਤੇ 20 120 यानी 40, 40 ਤੇ 4 44, टोटल 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 124 ਤੱਕ 144 ਬਣਿਆ, यानी 44% ਬਣਿਆ। लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤਵ ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, 43.5। क्यों, क्योंकि अपना पता है भी 80.5 ने आपा तो 80 मान के कीता, तो इसका मतलब है 0.5 घटेगा। 0.5 घटाओगे तो अपना कितना आएगा, 43.5। इत्थे किन्ने दी वृद्धि हुई है सर जी, 13.5% की वृद्धि हुई है। यानी आप कह सकते हैं कि 13.5 है वो किन्ने ते है, 30 ते है। इनू परसेंट कहो भावें रेशो मनो, 30 ते है। आपा नू तां 100 ते कटनी है ना, तो ये पॉइंट हटेगा थले की लग जाएगा 0। आ लो जी, तो 45 30 135 होंगे। आप डायरेक्शन च भी कर रहे हैं तो अपना आंसर की आ जाएगा 45। क्लियर, 45% आएगा बई। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਤਰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 300 400 ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 17 18 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। फटाफट दसो भी। चलो जी, ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन एक और देना मैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है। चलो जी, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। सो एक्सपेंडिचर ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 75%, एक्सपेंडिचर कितना करता है 75%। फिर वो कहता है कि जे ਉਹਦੀ इनकम 20% ਵੱਧ ਜੇ, किन्ने परसेंट ਵੱਧ ਜੇ, 20% ਵੱਧ ਜੇ, ठीक है जी। और एक्सपेंडिचर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਜੇ 10%। क्लियर, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, फटाफट ਦੱਸੋ फटाफट।
50%। चलो चेक करते हैं अभी। एक जने ने कढ़ता आंसर, एक ने 150 कढ़ता। देखो भाई 100 इधर 20% है, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, कितना हो गया 120। ठीक है जी, इधर कितना है अपने को 10% बढ़िया, यानी 75 का कितना कटेगा 10%। नॉर्मल कर लूंगे तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, 0 0 कट गई 7.5 आ गया। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 75 ਦਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7.5 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ 75 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 50%, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 10% ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 50% ਤੇ 10% ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, और जे 50% है तो ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ कर दो। क्लियर, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 75 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 82.5, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 82.5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 25, और 120 ਚੋਂ 82.5 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 7.5 ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, 10 ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਉਧਰ, 37.5 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 37.5। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ 37.5 ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀ ਰਕਮ ਸਰ ਜੀ 12.5 ਵਧੀ, ਤੇ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਧੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵਧੀ 25 ਤੋਂ ਵਧੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ 25 ਚੌਕਾ 100, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 50%। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ 50% ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲकुल सही है। शिवदीप मलिक और सुखप्रीत सिद्धू बिल्कुल भी बहुत ही बढ़िया। हाँ जी दसो भाई, पहला कंसैप्ट क्लियर समझ आ गया। इनकम दे उत्ते, इनकम दे उत्ते पहला कंसैप्ट क्लियर समझ आ गया। दसो भाई चलो जी समझ आ गया तो बहुत बढ़िया गल है। हुण आपां इहदे विच ही दूजा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनकम दे विच की बनदा है। दूजा नंबर जिहड़ा क्वेश्चन बनदा है पेपर दे विच, ओह की बनदा है सुनियो। वो कहता है एक व्यक्ति की कुल आय यदि 6,000 रुपीज बढ़ जाती है, हिंदी थोड़ा मैं जल्दी लिख देना, ठीक है जी, बात पंजाबी समझा दूंगा। एक व्यक्ति की जिहड़ी कुल आय है वो 6,000 रुपए बढ़ जाती है, और यानी अते आयकर दी दर, आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। 18% से 15% हो जाती है यदि दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति की %25 आय कर मुक्त हो, वह समान कर देता हो तो उसकी प्रारंभिक आय क्या है।
उसकी प्रारंभिक आय क्या है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ क्वेश्चन लिखा ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਇਨਕਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ 6000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 18% ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 15%। ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। मतलब इनकम टैक्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट जे घटेगी तो उन्हां दी इनकम बढ़ेगी, और जे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उन्हां दी इनकम की होएगी? घटेगी। ये गल ध्यान रखना। तो वो कहता है कि आ जेडे 6000 रुपए बढ़े ना, एक कदों बढ़े? जदों इनकम टैक्स की जिहड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 18% तो किन्ने परसेंट होगी? 15% होगी। क्लियर? फिर वो कहता है यदि यानी उदों ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ 18% ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 15% ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? 25%। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 20000 ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 25% ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ 5000 रुपया माइनस कर दो 20000 तो, यानी 15000 रुपए ते की लगेगा? टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? इत्थों तक दसो सारे नूं समझ आ गया कि मैं तुहानूं जो चीज दसना चाहता सी वो क्लियर हुई कि नहीं हुई? इंटरेस्ट जेड़ा आयकर है उसकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो अपनी इनकम घट मिलेगी आपां नूं, जे घटेगी तो आपां नूं इनकम वध मिलेगी। आया भी समझ? चलो जी अगे। उन्होंने की किया कि वह समान कर देता है। उन्हें क्या और मतलब इस कंडीशन दे विच भी उन्हें जेडी इंटरेस्ट सॉरी इस परसेंटेज दे विच भी उन्हें वही इनकम टैक्स दिता जेड़ा उन्हें 15% वाले ते दिता। यानी कहण दा भाव ये होया कि भावें ओदी इनकम जरूर वध गई लेकिन उन्हें टैक्स किवें दे दिता? सेम दिता। अगे चलो। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਆय क्या है। तो पहला ਆਪਾਂ करते हैं बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। चलो जे मैं मान ला कि उस बंदे दी कुल आय कितनी है, उस बंदे दी जिहड़ी कुल इनकम है वो कितनी है, आप कह देने हैं जी x रुपए है, क्योंकि अपने को नॉर्मल कर रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं। एक गल ध्यान रखना कि उस बंदे दी कुल इनकम कितनी है? x रुपए। फिर उन्हें कहा जी उस बंदे दी कुल इनकम किन्ने रुपए वध जे? 6000 रुपए वध जे, यानी x प्लस 6000 रुपये वध जान। ठीक है जी, वध गए। अगे चलो। फिर उन्हें की किया 6000 वध जान और आयकर दी जिहड़ी दर है वो 18%, यानी पहला तो कितनी लग रही सी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टैक्स दी? 18%। हुण कितनी लग रही है? 15%। ठीक है जी। यदि दोनों ही परिस्थितियां दे विच उस व्यक्ति दी जिहड़ी आय सीगी वो किन्ने परसेंट कर मुक्त हुई? 25%। भाव जे इत्थे x रुपए ने तो x रुपया दे विचों 25% ते टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स किन्ने ते लगेगा? फटाफट दसो टैक्स किन्ने ते लगेगा? टैक्स किन्ने ते लगेगा? जे 25% इनकम कर मुक्त है तो टैक्स किन्ने ते लगेगा? फटाफट दसो। x माइनस 25%, यानी 75% ते लगेगा। सीधे लिख दो तुसी किन्ने ते लगेगा? 75% ते लगेगा। बहुत बढ़िया। इधर भी किन्ने ते लगेगा? 75 ते। क्यों? क्योंकि उन्हें साफ साफ क्या दोनों ही परिस्थितियां दे विच उस व्यक्ति दी जिहड़ी इनकम है वो 25% कर मुक्त है। जे 25% कर मुक्त है तो आपां नूं पता लग गया 75% ते की लगेगा? टैक्स लगेगा। इन्नी चीज समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? यस और नो? बहुत बढ़िया, आ गई समझ। हुण देखो जी तुसीं इहनूं लिखोगे तो एवें लिखोगे नॉर्मल x इंटू 75%, इस रकम ते टैक्स लगेगा 18%।
उवें इत्थे लिखोगे x प्लस 6000 दी 75% इनकम ते टैक्स लगेगा, वो भी किन्ने परसेंट 15%। फिर उन्हें की क्या आगे उन्हें क्या उस व्यक्ति की 25% आय कर मुक्त है और वह क्या देता है समान कर देता है। समान कर मतलब एते जेड़ा इंटरेस्ट यानी एते जेड़ा बनेगा इनकम टैक्स वो सेम इनकम टैक्स किन्ने ते बन रहा है इस रकम ते बन रहा है यानी बराबर है वो रकम की है बराबर है। तो हुण तक क्वेश्चन दे विच कुछ रह ही नहीं गया, इनू सोल्व करना है बस इस थीम नू। देखो इस 75 दे नाल आ 75 कटता आपां क्योंकि बराबर दे जेड़ी इधर रकम है वो कट सकती है कटती जी मैं। फिर देखो 100 दे नाल की कट गया 100 क्योंकि थल्ले वाली रकम थल्ले वाली नाल कट सकती है। अपने कोले रियल्टी च की बचा 18x और इधर की बचा 15x 15 छिक 90 कितना बचा 15 छिक 90 यानी 90,000 बचा। हुण आपां नूं पता है कि ये भी 18 इनू आपां 18% ही कहांगे ना यस या नो। ये भी अपना 100 दे नाल 100 जरूर कटता लेकिन आपां नूं पता है कि ए इधर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 18x इधर 15x और इधर कितना है 90,000। तो आप इन्हों चो 15x इधर जाएगा तो कितना बचेगा ये बचेगा जी 3x 18 चो 15 गए 3x 3x की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 90,000 दे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 यानी ओदी जिहड़ी पहली इनकम सी वो 30,000 रुपए सी तो हुण किन्ने हजार रुपए है 36,000 रुपए है। समझ आ गया कि नहीं आया और क्वेश्चन का वे तुहानू किवें दा लग रहा वो भी दसो। क्वेश्चन का जिहड़ा वे है वो भी तुहानू किवें दा लग रहा है और क्वेश्चन वधिया लग रहा है कि नहीं लग रहा ये भी दसो। बहुत वधिया भी चलो जी ये तो मैं तरीका दसिया नॉर्मल। हुण आपां इसे ही तरीके नू करदे हां आप दी ट्रिक दे नाल। आ लो जी सन्नी जी जो मैं पूछता हूं उदों तुसीं क्यों नहीं पूछते भी हुण मिटा दिता हुण तुसीं पुछया। चलो देखो हुण नवा तरीका सीखो इसी क्वेश्चन का। बाकी जे करना हो वही क्वेश्चन नू रिपीट उसी तरीके नू इनू एक बार रिवाइज कर लियो ठीक है ना। हुण देखो उन्हें की क्या सीगा इनकम पहला कितने रुपए मनी आपां x रुपए इनकम कितनी वध गई 6,000 रुपए। उन्हें पहली इनकम ते देना सीगा 18% टैक्स दूजी ते देना सी 15% टैक्स क्लियर। फिर उन्हें आपां नू क्या सीगा कि 25% आय कर मुक्त है तो आपां किन्ने ते टैक्स देना है 75 ते और आपां नू उन्हें लास्ट विच क्या कि दोनों स्थितियां विच जेड़ा टैक्स है वो तुसी बिल्कुल समान दे रहे हो बराबर दे रहे हो तुसी बराबर लिखता। हुण तुसी की करना है देखो इस 75 दे नाल आ 75 ते कट गया क्योंकि अपने किसी काम का ही नहीं है कट दो। हुण तुसी की करना है देखो ध्यान नाल देखो इस 18 नू इस 18 नू आपां एवें कह सकते हैं दसो कह सकते हैं कि 15 प्लस 3% कह सकते हैं ना। क्यों कह सकते हैं आपां क्योंकि आपां नू पता है कि जिथे 18 लिखा होया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆ मैं 10% ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਤੱਕ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਰਕਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨੇ 18% ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ 15% ਕਿਹਾ मतलब ਵੀ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ
18 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ 15 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ x ਦਾ 15% प्लस इसे ही x का 3%। यानी मान लो कि इतने x मान लो सपोज दैट 10,000 रुपए है, मैं तुहानू कहता कि 10,000 का 18% करो तो तुसी कहोगे सर 1800 आएगा सीधा। और जे मैं तुहानू कहां कि 10,000 का पहला 15% करो तुसी कहोगे सर 1500 आएगा, और फिर कहां 3% करो तो कितना आएगा 300, जोड़ोगे तो आएगा तो 1800 ही ना। क्वेश्चन तो कोई प्रभाव नहीं पिया, बट एवें करना अपना क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। देखियो ध्यान नाल, यस देखियो ध्यान नाल सारे जने, सारे जने ध्यान नाल देखियो। x का 15% प्लस x का 3%, क्लियर। हुण आपां लिखता इत्थे, इधर आ जाओ, इधर की करोगे तुसीं, इधर एवें लिखोगे, इधर भी x का 15% प्लस 6,000 का 15% कह सकते हो कि नहीं। यानी इनू भी डबल च लिखता, इनू भी डबल च लिखता, कोई दिक्कत नहीं है। हुण देखो बराबर दे इधर भी x का 15% है तो इधर भी x का 15% है, कटता अपने को इत्थे की बच गया, इत्थे बच गया 3x परसेंटेज, यानी इत्थे बच गया 3% x, और इधर की बच गया, इधर बच गया जी 15 छिक 90, यानी 90,000 अगे परसेंटेज, इस परसेंटेज ना परसेंटेज कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000। कैवें दी लगी ट्रिक, लॉजिक कैवें दा लग्या, ये सिर्फ लॉजिक है, ट्रिक नहीं है, ध्यान रखना ये सिर्फ लॉजिक है, ट्रिक नहीं है। फटाफट इनू उतार लो या लिख लो। बहुत बढ़िया भी आ गया समझ में सारे नू, ये थीम समझ आई कि नहीं आई? ओके गुड। हुण इहो जिहा क्वेश्चन एक होर दे रहा तुहानू मैं, वो तुसी करना है। चलो बोल नहीं रहा मैं, फटाफट लिखो। हेलो जी, किसी व्यक्ति की आय 27,200 रुपए है, यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है और आयकर की दर 12% तो 10% बढ़ जाती है, कट जाती, सॉरी इतने कटो लिखो,
घट जाती है, 12% 10% घट जाती है। और यदि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान कर देता है तो दसो ओदी आय कितनी वधी। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, फटाफट विद इन 1 मिनट दे विच उत्तर दे दो सारे जने, विद इन 1 मिनट। बहुत ही वधिया विश्वदत्त मलिक, बहुत ही वधिया, मजा आ गया उत्तर देने से। जेड़ा कंसेप्ट सीख रहा है बच्चा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ बहुत सिंपल चीज है। देखो भाई, किसी व्यक्ति की आय 27,200 रुपए है, 27,200 रुपए है, और फिर उन्हें क्या यदि उसकी आय x रुपए बढ़ जाती है तो 27,200 प्लस x रुपए बढ़ गई। सेम कंडीशन, पहला x इथे सीगा, इथे x प्लस 6,000 वधी सी, हुण इनकम 27,200 दे रखी है तो वधी कितनी है x रुपए। उन्हें क्या यदि उसकी आय x रुपए बढ़ जाती है और आयकर की दर 12% तो 10% घट जाती है, यानी 12% सी पहला टैक्स दिंदा, हुण कितने परसेंट टैक्स दे रहा है 10%। हुण आपां नूं उन्हें आ चीज तो लिखी नहीं किते भी ओदी इन्ने परसेंट आयकर मुक्त है, नहीं लिखी तो मतलब है पूरी पूरी दी पूरी इनकम ते की लग रहा सी टैक्स लग रहा सी। ठीक है जी, आगे चलो। यदि दोनों ही परिस्थितियों में वह समान कर चुकाता है, आ लो जी, हुण तुसीं की करना है, हुण तुसीं आ चीज जिहड़ी तुहानूं दस्सी हुई है मैं, तुसीं आ लो जी यही करोगे ना, इनू कहोगे 10%, इनू कहोगे 2% कहोगे ना, और इनू की लिखोगे, इनू लिखोगे तुसी 27,200 का 10% प्लस फिर कहोगे 27,200 का 2%, या मर्जी 2% कह लो सही, और इधर की कहोगे, इधर कहोगे जी तुसी 27,200 का 10% प्लस x का कितना 10%, यही कहोगे। तो हुण देखो आपां नूं सब पता लग गया, इहदे नाल आ कट जाएगा ना 27,200 तो 10 27,200 कट गया। हुण आपां नूं पता है 27,200 दा 2% करना है, आपां कितने परसेंट करना है 2, यानी कहने दा भाव ये हो गया तुसीं इहनूं मल्टीप्लाई कर दो, इनू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4 7 दूनी 14 ते 2 दूनी 4 ते 5 कितना आ गया 54,400 आ गया। ठीक है जी, थल्ले 100 पे आया, इधर की अपने कोले x ਦਾ 10%, कितने परसेंट x ਦਾ, यानी कि 10x बटा विच 100 आ गया, 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੱਟਦਾ ਇਹਦਾ मतलब सीधा ਤੁਸੀਂ परसेंटेज ਦੇ ਨਾਲ परसेंटेज ही ਕੱਟਦਾ, तो 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟਦਾ, x ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई ना, दसो भाई आई कि नहीं आई। और मेरी भाई उन्हां बच्चों को गुजारिश है ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਓ ਕਲਾਸਾਂ, ਬਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जिन्ना भी मैटर मैं दे रहा वा वो सफिशिएंट है ਤੁਹਾਡੇ पेपर वास्ते। TCS अगर ਤੁਹਾਡਾ पेपर लेता है ना तो मेरा वादा है कि परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। ਅੱਜ बोल रहा वा ਇਹਨੂੰ रिकॉर्ड कर लो भाਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन कराऊंगा ਅੱਗੇ ਹੁਣ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਕੁਐਸਚਨ परसेंटेज ਦੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 6 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7th 8th 9th और 10th ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸ चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो हम अगला क्वेश्चन की होता है इनकम दे विच तीजे नंबर ते इनकम दे उत्ते केड़ा क्वेश्चन पूछता है तीजे नंबर ते इनकम दे उत्ते क्वेश्चन पूछता है आला यदि आयकर 19% बढ़ जाता है यदि आयकर 19% बढ़ जाता है तथा शुद्ध आय 1% शुद्ध आय 1% कम हो जाती है तो बताइए कि आयकर की दर क्या होगी तो बताइए कि आयकर की दर क्या होगी ये तुसी दसना है ये अपना आय देखो इनकम टैक्स दे विच आपां किन्ने क्वेश्चन कीते देखो आपां किन्ने क्वेश्चन कर ले देखो इनकम टैक्स दे विच आपां कीते ना पहला क्वेश्चन आपां कीता सिंपल इनकम जेदे च पूछेगा सेविंग ते की प्रभाव पएगा दूजा क्वेश्चन आपां ये कीता कि जेदे विच आपां नूं ये पूछेगा ओदी प्रारंभिक इनकम की सीगी ते तीजा क्वेश्चन आपां नूं की पूछेगा कि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इनकम टैक्स दी की रहेगी क्लियर है आ रहा है ना मजा पढ़न दा पहला दसो मैनू पढ़न दा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा कि मैं एवें ही बोल के चले जाना क्लास दे विच दसो और भी मैं टीम दे नाल एक छोटी जी गल करना चाहना भी टीम नूं मैं एक ही गल कहना चाहांगा कि जेड़े बच्चे क्लास नहीं लेंदे ने उन्हां नाल प्लीज एक गल करो उन्हां नाल भी क्लास क्यों नहीं ले रहे हो और वो बाद में लेंदे ने या लेंदे ही नहीं क्लास क्योंकि देखो उन्हां दा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है रीजनिंग वाली क्लास दे विच भी वही 15-20 जवाक बैठे हुंदे हैं ते मैथ विच भी वही 15-20 बैठे हुंदे ने जदों कि जवाक अपने कोले 40-50 बच्चे बैठ बैठे ने क्लास दे विच हां जे उन्होंने पढ़ना ही नहीं तो अलग मैटर है चलो जी यदि आयकर 19% बढ़ जाता है उन्हें की क्या यदि आयकर 19% बढ़ जाता है तथा शुद्ध आय 1% घट जाती है तर इनकम टैक्स की रेट दसो जदों इनकम टैक्स की रेट पूछेगा ना आपां नूं तो तुसी एक ही गल ध्यान रखनी है रेट ऑफ इनकम टैक्स किवें कढनी है तुसी ऊपर छोटी संख्या दोनों विचों नीचे जड़ा आएगा वो आएगा टोटल ये आएगा टोटल इनटू 100 बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 19% ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਇਨਕਮ 1% ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ ਕਹਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਇਕਰ 19% ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆय ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਹੈ ਥੱਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20 100 कितने परसेंट आ गई 5% आ गई आ गया समझ में सारे नूं आ गया समझ में सारे नूं बहुत बढ़िया मिस्टर नहीं ओके हुण इहो जिहा क्वेश्चन बोल रहा मैं तुसी करो फटाफट सारे जने
यदि आयकर 17% वध जाता है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 17% ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆय ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆय ਹੈ ਉਹ 3% ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। इनकम टैक्स की रेट की है फटाफट। बहुत बढ़िया नहीं 15% तुसी उत्तर दिता, बहुत ही बढ़िया। की करांगे ਆਪਾਂ 3 बटा ਦੇ ਵਿੱਚ 20 into 100 है ना, 3 बटा 20 यानी 3 20 5 100 कितना हो गया 15%। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, इथों तक सारे का क्लियर होया इनकम टैक्स, फटाफट दसो इथों तक इनकम टैक्स सारे का क्लियर हो गया। यस और नो, इनकम टैक्स इथों तक सारे का क्लियर है, बहुत बढ़िया। इनकम वाले सारे क्वेश्चन कर ले। हुण आपां जिहड़ा करन जा रहे हैं वो करन जा रहे हैं कमीशन बेस क्वेश्चन। केड़ा? कमीशन बेस, ध्यान रखना, ठीक है जी। आपां करन जा रहे हैं हुण कमीशन बेस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नूं कराउण तो पहला मैं तुहानूं एक क्वेश्चन दे रहा हां, इहदे विच ही पहला आपां वो समझांगे, फिर तुसीं आला क्वेश्चन आप करियो, ठीक है ना। आला क्वेश्चन तुसीं आप करोगे, बस मैं एक समझाऊंगा, उस तो बाद सारे क्वेश्चन 47 48 49 ते 50 ये तुसीं घरों करने हैं, ठीक है जी। चलो जी, क्वेश्चन की कहता है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। 12% कमीशन देती है। 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बिक्री पर 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। बोनस भी देती है यदि उस विक्रेता की कुल कमाई, यदि उस विक्रेता की कुल कमाई 7650 रुपए है तो कुल बिक्री याद करो। तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ये अपने को उन्हें की पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है जी। ये सिंगल ही क्वेश्चन बनता है कमीशन बेस के उत्ते, इहो जिहा क्वेश्चन ही पेपर दे विच पूछदा है। हालांकि आप इनू भी चेंज कर देंगे, लेकिन अज आप यही सीखांगे, बस सिंगल कंसैप्ट और अपना टॉपिक कंप्लीट कमीशन बेस वाला, ठीक है ना। एक गल ध्यान रखना सारे जने, क्लियर।
चलो जी हुण देखो सारे जने की करना इन्हें की क्या अपन एक कंपनी आ देखो इथों शुरू हो जाओ और आ कंपनी का बंदे ने बिक्री की इथों तक एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है मतलब कोई सेल्समैन है कोई सेल्समैन है ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਂਗੀ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 12% ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਟੋਟਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ 12% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਦੈਟਸ ਆਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 1% ਬੋਨਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਊਂਗੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 15000 रुपए की बिक्री की होएगी भी वो मानता है कि मेरी टोटल बिक्री 15000 की हुई मान लो तो कहने का भाव है कि उन्होंने 15000 रुपए तक तो 12% कमीशन मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा ना 12% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा 15000 के उत्ते फिर वो सोचता है कि जे मैं 15000 रुपए तो ऊपर जे मैं 15000 रुपए तो ऊपर भी किसी को बिक्री करदा वा मान लो और पूरी बिक्री मैं इतों तक कर देना तो मेनू कंपनी 12% कमीशन तो देगी देगी ना कंपनी मेनू 15000 तो ऊपर 12% कमीशन तो देगी ठीक है जी देता उन्हें हुण 12% कमीशन तो बाद वो मेनू 1% की देगी बोनस भी देगी कि नहीं देगी बिल्कुल देगी तो मैं मेरा दिल बागो बाग हो जाएगा बिल्कुल जी होएगा तो वो की कहता है यदि उस विक्रेता की कुल कमाई 7650 रुपए हुण आपां नूं ये देखना है कि उस विक्रेता ने की 7650 रुपए इथों तक कमा ले सीगे चेक करो 15000 रुपए का 12% करो पहला करके देखो ये तो 1800 रुपये ही बनया कितना बनया 1800 रुपये ही बनया यानी कि जे वो 15000 रुपए तक की बिक्री करता है तो उन्होंने तो 1800 रुपये कंपनी देगी लेकिन कंपनी ने उन्होंने दिते किन्ने ने 7650 रुपए भाव कि उन्हें 15000 रुपए तो उन्हें की है ज्यादा बिक्री की है और ज्यादा बिक्री करने तो उन्होंने किन्ने परसेंट एक्स्ट्रा मिलया होएगा 12% तो मिलया ही होएगा और उन्होंने 1% बोनस होर मिलया होएगा टोटल किन्ने परसेंट मिलया होएगा 13% मिलया होएगा ठीक है जी यानी 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 13% जोड़ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ किन्ना आ जाएगा 7650 रुपए आ जाएगा कि नहीं आएगा आएगा ना और ये 1800 उधर जाएगा तो की होएगा माइनस यानी 7650 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1800 माइनस कर दो पहला ਤਾਂ 0 5 16 चो 8 गए 8 ਤੇ 6 ਚੋਂ ਗਿਆ 5 5850 रुपए ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 13% ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फटाफट दसो भी ठीक है जी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया आ गया ना समझ हुण आपां कहांगे 5850 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 13% ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ 100% किन्ने परसेंट कर लेना 100% 100% का मतलब होएगा इथों लेके ध्यान रखना क्योंकि इथों तक तो आपको पता है 15000 रुपये टोटल है ही यानी 100% इथों लेके इथों तक का होएगा चलो कट के देखो कितना आया 13 दूनी 26 13 ती है 39 13 चौक 52 पीछे रह गए 6 13 5 65 यानी कितनी आ गई इनकम 45000 रुपए आ गई यानी उन्हें इथों तक ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 1000 ਦੀ ਕਰਤੀ
45,000 ਦੀ ਕਰਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰਤੀ? 45,000 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 45,000 ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ, ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ? 60,000 ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ? 60,000 ਦੀ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ yes or no? yes, बहुत वधिया भी। चलो जी हुण फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आ क्वेश्चन तुसी करो करना है। क्वेश्चन नंबर 47 करो करना है। क्वेश्चन नंबर 48 ये भी तुहानू करो करना है। कल मैं फटाफट इसके उत्तर दस दूंगा बस। ये भी तुहानू करो करना है। ये देखते हैं ये तुसी दिमाग ला सकते हो कि नहीं, ये कल पता लगेगा। इस क्वेश्चन दे जे तुसी दिमाग ला दिता तो समझ लो कि तुसी बहुत अच्छे ज्ञानी बन गए हो। तुहानू समझ आ रहा है? मैं 49 नंबर क्वेश्चन करके लाना है तो 50 नंबर क्वेश्चन मैं करा दूंगा। वैसे ये तुहाडे सिलेबस तो बाहर है पर मैं दिता इस करके है क्योंकि जिथे TCS का नाम जुड़ता है उत्थे पेपर का लैवल मैं तुहानू पहला ही बोलता इस क्वेश्चन दे विच कुछ भी नहीं है। बट देखण च ऐ लगदा ना पता नहीं की देता लगदा है ना, इस करके ये मैं तुहानू कल करा दूंगा। 49 नंबर क्वेश्चन तक तुसी करके लाने ने सारिਆਂ ने। तो हुण सुनो एक अनोखी अनाउंसमेंट, एक अनोखी अनाउंसमेंट सुनो सारे जने। सारे जने तैयार हो अनाउंसमेंट सुनने वास्ते? सुना दा? चलो जी सुना देने हैं। तुसी याद रखना है हुण गुरुवार तो थर्सडे तो, कल तो नहीं, थर्सडे तो थर्सडे तो ध्यान रखना। देखो भाई थर्सडे तो ध्यान रखना, थर्सडे तो सारे जने थर्सडे तो तुसी की करना है सारिਆਂ ने थर्सडे तो तुसी सारिਆਂ ने ये गल ध्यान रखना है सवेरे 7 बजे तो लेके 8 बजे तक, सवेरे 7 बजे तो लेके 8 बजे तक ये गल ध्यान रखना। 7 बजे तो लेके 8 बजे तक तुहाडी क्लास लग्या करेगी सवेरे, ध्यान रखना। ये मैं टीम दे नाल डिस्कस कर लांगा 7 बजे तो 8 और रात नूं भी 7 बजे तो 8 ते 8 बजे तो 9। क्लियर? थर्सडे तो यानी सवेरे भी 7 बजे तो 8 बजे तक और शाम नूं भी 7 बजे तो लेके 8 बजे तक और 8 बजे तो लेके 9 बजे तक। ये तुहाडे 3 घंटे आपां स्टार्ट कर रहे हैं जिहदे विच की है कि ध्यान नाल देखना सारे जने। ये डिस्कस कर लांगे भी शाम का टाइम पूरा ही 2 घंटिया का मैथ का रख लीए, शाम का पूरा कितने घंटे का रख लीए? 2 घंटे का रख लीए। क्लियर? और जिहड़ा आ वाला है इत्थे आपां रीजनिंग रख लीए सवेरे। क्लियर? ये मैं डिस्कस कर लांगा सर दे नाल, टीम दे नाल अपनी ना कि थर्सडे तो सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक रीजनिंग हो जाया करेगी और शाम को 7 बजे तो लेके 9 बजे तक लगातार 2 घंटे तुहाडी मैथ हो जाया करेगी। क्योंकि जे आपां 1 घंटा सवेरे मैथ दा पढ़ते हैं और शाम को 1 घंटा मैथ दा पढ़ते हैं अदों दिक्कत हो जाती है।
क्लियर? क्लियर है बच्चों? क्लियर है सारे? फटाफट दसो। ओके, तो ये मैं डिस्कस कर लांगा। तो हुण अपनी क्लास रीजनिंग दी है, फटाफट सारे जन रीजनिंग वाली क्लास च आ जाओ, ठीक है ना? ओके, 2 घंटा इस करके कर रहे हैं क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ पेपर ਦੀ ਜਿਹੜੀ डेट है वो आ चुकी है, पता लग गया मैनू। सो इस करके तैयार रहो सारे जने, ठीक है जी? मिलते हैं नवे सैशन दे विच, फटाफट रीजनिंग वाली क्लास च पहुंच जाओ।